in the previous class, please be attentive. We have started with the pituitary gland, and we have discussed about the different, क्या क्या पढ़ा था हमने pituitary gland में? Up to what we have covered? We have covered up to the regulation, feedback control, isn't it? Growth hormone के बारे में discuss कर रहे थे. We are discussing about started with the growth hormone, and we have discussed about the feedback control of the growth hormone level, isn't it? So can you tell what are the different cell types in the anterior pituitary? What are the classification of the different cell types in the anterior pituitary gland? Yes? Chromophobe and chromophil cells थे ना? Chromophobe and chromophil cells. And in the chromophil cells you are having the acidophil and basophil cells. Acidophil cells में कौन से थे? Two types, somatotrophs and lactotrophs, isn't it? And you were having the gonadotrophs, corticotrophs and thyrotrophs as the basophilic cells, isn't it? So where they were releasing their respective hormones, isn't it? So we have covered up to that. We will see further. So we had started with the growth hormone, isn't it? So majority of the cell types in the anterior pituitary are somatotrophs. Okay, somatotrophs होते, and their gene are located on chromosome number 17, long R. Okay, we have seen all these things. So we will start with the what are the physiological actions of the growth hormone. है ना, ग्रोथ हार्मोन एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं यूजुअली, एंड रीजनिंग बेसिस से क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें से फिजियोलॉजिकल काउजेज से. सो एज ए होल द ग्रोथ हार्मोन इज ए एनाबोलिक हार्मोन. हमारे बॉडी को क्या करता है, ये ग्रोथ में हेल्प कर रहा है. सो समथिंग सम एनाबोलॉजी मस्ट बी हैपनिंग हियर. सो इट इज ओवरऑल एनाबोलिक हार्मोन. ओके, एंड यू नो ऑल नो जितने हार्मोन होते हैं वो क्या एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलते हैं वो जाके टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं, टारगेट ग्लैंड पे. लाइक TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दे विल गो एंड एक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड, इजंट इट? थायराइड ग्लैंड से फर्दर फिर सिक्रीशन होगा T3 T4 एंड देन इट विल एक्ट ऑन द रेस्पेक्टिव टारगेट टिश्यूज. बट हियर ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली गोज टू द टारगेट एरिया, इजंट इट? वो कोई अदर डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड को फर्दर सीक्रेट नहीं कर रहा, isn't it? डायरेक्टली आपको क्या हो रहा है, टिश्यूज पे सेल्स पे काम कर रहे हैं और उसके ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं, isn't it? So it does not function through a target gland, and you all know it is having two modes of action. लास्ट क्लास में बताया था दो तरह से ये एक्ट करता है. एक कैसे करता है, ये डायरेक्टली एक्ट करता है, and there is another mode of action, that is it acts through the indirect action is through the insulin like growth factor, somatomedin C, है ना? वो लीवर से रिलीज कराता है उसको और वो उससे एक्शन करवाता है वो. ओके, सो इट एक्ट्स इनडायरेक्टली एज वेल बाय somatomedin. So we'll see all those actions, how they are being undertaken. So as we have seen, growth hormone is having a short term, दो तरह के बेसिकली एक्शन है. यू कैन क्लासिफाई इट एज बेसिकली टू ग्रुप्स ऑफ एक्शंस. वन इज डायरेक्ट एक्शन जो हो रहा है, एक इनडायरेक्ट एक्शन हो रहा है. ओके, एक मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं. ओके, एक मेटाबॉलिक एक्शंस होते हैं और एक होते हैं ग्रोथ के एक्शंस जो होते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं. ओके, सो लॉन्ग टर्म जो एक्शन होते हैं वो ग्रोथ प्रोमोटिंग इफेक्ट करते हैं. शॉर्ट टर्म इफेक्ट इज द मेटाबॉलिक इफेक्ट, है ना? शॉर्ट टर्म इफेक्ट विल बी metabolic effects. Metabolic effects means it is how it is acting on the carbohydrates, fats and proteins, isn't it? What is its influence? And long term effect is growth promoting action. Okay, so the
ये जो शॉर्ट टर्म एक्शन है, that is the metabolic action. You can see short term, that is acute or metabolic actions, it is basically on the metabolism को affect कर रहे हैं. Whether it is on carbohydrates, carbohydrates में क्या करते हैं ये? It increases the glucose level, है ना, diabetogenic action है. Okay, and on the lipids it is overall a lipolytic action, because it preferential, इसका क्या होता है, it utilizes the lipids as the energy source rather than the carbohydrates. Usually क्या होता है, glucose is the source, isn't it, especially in the brain and RBCs, है ना, वो glucose source होता है. लेकिन ये क्या करता है, growth hormone basically it acts as a lipid as the primary source of energy. Okay, so lipolytic action होता है. And decrease glucose uptake, glucose uptake कम करे, glucose level बढ़ाना है इसको. So on the carbohydrates you all know it is diabetogenic action, glucose का level blood में increase करेगा, isn't it, anti insulin action you can say, isn't it. So and ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ा रहा है ये, या तो मसल्स का अपटेक को कम कर रहा है, ग्लूकोज को, स्केलेटल मसल. ओके, ग्लूकोज का जो अपटेक हो रहा है मसल्स में उसको कम करता है, या जो हेपेटिक आउटपुट है ग्लूकोज से, वेदर इट इज बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो उसको इंक्रीज कर रहा है, सो दैट द लेवल ऑफ ग्लूकोज इज इंक्रीजिंग. ओके, बट देयर इज ऑल्सो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स. इनडायरेक्ट इफेक्ट you all know it is long term promoting action. Growth promoting action is the long term effect. Long term action is the growth promoting action. Growth में help कर रहा है growth hormone, everyone knows it helps in the growth of different tissues and cells and visceral organs, overall growth कराता है. Okay, but it is mediated by, जो long term action है, it is mainly mediated by इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. तो आपके बॉडी में जो ग्रोथ जो करा रहा है, प्राइमरली इट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ऑब्वियसली ग्रोथ हार्मोन आल्सो एक्ट कर रहा है, लेकिन प्रीडोमिनेटली इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर से मेनली आपका जो लीनियर ग्रोथ है, बॉडी ग्रोथ है, वो इससे कराता है. और मेटाबॉलिक एक्शंस इज प्राइमरली बाय द ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली. ओके, एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इज द प्रीडोमिनेंट सोमैटोमेटिन सी जिसको कहते हैं. यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर दो तरह के हमने बताया था, 1 और 2. 2 फीटल लाइफ में होता है. ओके, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज मोर पोटेंट इन मेडिएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ओके, obviously as I have told you, growth promoting effects are also part of the direct action of growth hormone. Growth hormone directly भी कर रहा है growth promotion, but predominantly it is by insulin like growth factor. Are able to understand? है ना, ग्रोथ हार्मोन एक्शन दो तरह से कर रहे हैं, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली कर रहे हैं. तो जो डायरेक्टली कर रहा है वेरी मेनली मेटाबॉलिक एक्शंस कर रहा है, बट आल्सो इट डज द ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन आल्सो. बट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज हैविंग द प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ ग्रोथ प्रमोशन. So you can see the functions of growth hormone here. So obviously you want this body or this body, first or second? Second, everyone wants that. So this growth hormone is having such a wonderful role in shaping your body. Okay, तो biceps बोलते हैं इस तरह से बनाने के लिए. तो अगर growth hormone का lack है, your body will be like this, you will be depressed. Okay, depressed होगा, frustrated होगा, and you can see that there will be increased risk of memory loss, memory कम होगा उसका. Okay, growth hormone कम है तो. And there will be increased fat tissue, fatty ज़्यादा होगा वो, and in unusual location where you do not want to have. Okay, and you will not have the sexual desire. Okay, decrease bone strength, osteoporosis का risk ज़्यादा होगा. And if you are having the adequate level of growth hormone, you will have a very cheerful and bodyful. Your body will be healthy, isn't it? You can see sharper mind, you will have a lot of confidence, isn't it? And you are having a happy life, and you will have the muscles where you want actually, isn't it? So इस तरह से आपका होगा, you will have a strong libido.
and you are having a strong bone. So ultimately what happens under the influence of growth hormone, lean body mass is increased. Lean body mass समझते हो? Lean body mass, एक होता body mass as a whole. Okay, okay. Like lean body mass is body mass minus the fat. Okay, fat content कम होगा इसका, muscle strength ज़्यादा होगा. Okay, so you can overall the function of growth hormone you can correlate with that figure. Okay, so growth promoting actions is primarily by the insulin like growth factor, but it is also done by the growth factor also. Okay, so it promotes the linear growth. Insulin like growth factor as well as growth hormone, they promote the linear growth. आपका height को increase करेगा, isn't it? Before the fusion of the epiphyseal plate से पहले obviously height increase होगा, so it will act on the cartilage as well as the bone. Cartilage में भी काम कर रहा है और bone में भी काम कर रहा है. Cartilage में क्या कर रहा है? It stimulates the proliferation of the cartilage forming cells, that is the chondrocytes. Chondrocytes का level को बढ़ा रहा है, increase कर रहा है. Okay, it increases the proliferation of the chondrocytes in the which part? Growing region कौन सा होता है? Epiphyseal region को कहते हैं ना. Bone का region होता है कि epiphyseal plate होता है. Then metaphysis, diaphysis you all know. तो epiphyseal plate grow करता है basically. वही क्या होता है? वो cartilage से bone में form होता है, वो increase करता है length, isn't it? So what is happening here? It stimulates the proliferation of these cartilage forming cells and in the epiphyseal plate of the long bone, isn't it? And basically two functions are happening here in the cartilage. दो important चीज होता है, एक proline को proline is amino acid. It gets converted to the hydroxyproline, okay, by addition with the collagen. Collagen के साथ मिलकर hydroxyproline बनाता है. And hydroxyproline is a very important marker of growth hormone activity. Hydroxyproline, urine में check भी करते हैं hydroxyproline का level. Okay, तो hydroxyprolinuria you can say, it indicates growth hormone activity. Okay, so what happens? There is formation of hydroxyproline and there is chondroitin sulfate. हाँ, ये दोनों मिलकर क्या होता है? Cartilage को growth को बढ़ाता है. Okay, and conversion of cartilage into the bone. Okay, so ultimately what happens? There will be linear growth. Growth क्या होगा? Linearly tall होगा subject. And in the bone, what will happen? It will increase the bone mass. Bone का mass भी तो चाहिए. Bone mass, bone girth, and mineralization of the bone. It increases the mineralization. How? By increasing the activity of osteoblastic cell more. दोनों एक्टिवेट होते हैं. दो तरह के सेल्स होते हैं ना बोन सेल्स में होते हैं, एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरा क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट है. दोनों को एक्टिवेट करते हैं, बट it activates more of the osteoblastic activity. So bone formation will be more, isn't it? It stimulates more of the osteoblastic activity than the osteoclastic activity. Okay? So ultimately the bone mass and girth and the height will increase, isn't it? So bone पे ये action है इस तरह का, growth promoting actions. Then there is action on the skeletal muscle. As we have seen, it increases the lean body mass. Lean body mass increase कैसे हो रहा है? Muscle का hypertrophy हो रहा है, hyperplasia हो रहा है. दो word होता है, hypertrophy और hyperplasia. What is the difference? हाँ, which is hyperplasia is number of cells increase हो रहा है. Hypertrophy is increase in size. Okay, so it increases the hypertrophy and hyperplasia of these muscles. Okay, and what will happen? Ultimately, ये हो क्यों रहा है? Because जो हमारा जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ग्रोथ हार्मोन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, यू ऑल नो. ओके, मेनली फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. सो व्हाट विल हैपन? इट विल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द स्केलेटल मसल बाय इंक्रीजिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, एंड देयर इज ए प्रोजेनेटर सेल्स इन द स्केलेटल मसल का एक प्रोजेनेटर सेल जिसको हम स्टिलेट सेल्स कहते हैं, उसको ये एक्टिवेट करता है. इट एक्टिवेट्स द एक्टिविटी ऑफ दिस सैटेलाइट सेल्स जिसको बोलते हैं, सैटेलाइट सेल्स ऑफ द स्केलेटल मसल. प्रोजेनेटर सेल्स है, उसको एक्टिवेट होगा तो मसल सेल
का नंबर इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, isn't it? And under the influence of different proteins, and obviously on the overall different organs, different soft tissues, connective tissues, ligaments, सबका ये क्या करेगा, विसरोमिगैली, विसरल ऑर्गन्स को क्या करेगा, उसका साइज को इंक्रीज करेगा, visceral growth karega. Okay, it increases the growth of all the internal organs and the other soft tissues, connective tissues, ligaments, skin, everywhere it will act. Okay, and also you all know during puberty the height increases due to the spurt in the growth hormone level. Growth hormone level increase hota hai na? So that's why pubertal growth and gonadal growth. Obviously अगर growth hormone activity proper नहीं है तो आपका लॉस ऑफ लिबिडो रहेगा, टेस्टिकुलर एट्रोफी, टेस्टिकुलर फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगा, ओवेरियन फंक्शन विल बी लेस, सो गोनाडल ग्रोथ आल्सो अकर्स, pubertal and gonadal growth. So overall this is the growth promoting actions. The next function is metabolic actions. ये दो ब्रॉड हेडिंग्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं ग्रोथ हार्मोन का फंक्शंस को. एक तो ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शंस हो गए, दूसरा हो गया मेटाबॉलिक एक्शंस. मेटाबॉलिक एक्शंस में डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स पे कैसे काम कर रहा है, फैट्स पे कैसे कर रहा है, प्रोटीन पे क्या कर रहा है. ओके, सो ओवरऑल इफ यू सी ग्रोथ हार्मोन विद द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है ना, मसल बल्क बढ़ रहा है, विसरल हर ऑर्गन्स का इंक्रीज हो रहा है साइज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली. सो एनाबॉलिक एक्शंस है. एनाबॉलिक कैसे होगा, सेल को क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को पुश करेगा सेल में, isn't it, for more protein synthesis. Okay, so increase transcription है ना, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा. इंक्रीज ट्रांसक्रिप्शन, देन इंक्रीज ट्रांसलेशन एंड डिक्रीज कैटाबोलिज्म. कैटाबोलिज्म कम करेगा, ब्रेकडाउन कम होना चाहिए, isn't it? Then increase amino acid uptake. So obviously these all will lead to the positive nitrogen balance है ना, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है. ओके, so this is a function on the protein metabolism. Then so it will ultimately it will increases the lean body mass है ना. lean body mass means मसल को आपको ग्रोथ को बढ़ा रहा है और फैट को कम कर रहा है. ओके, एप्रोप्रिएट प्लेस पे मसल्स जा रहे हैं जहां पे होने चाहिए. ओके, then coming on to the fat metabolism, we have seen that it is having a lipolytic action है ना. it uses lipids more as a energy है ना. ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, लिपिड्स को क्या करता है, मोबिलाइज करता है और उसको एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट करता है. ओके, स्टोर्ड फैट जो होते हैं हमारे बॉडी में, दैट इज द ट्राइग्लिसराइड्स. ओके, उसको क्या करता है, वो मोबिलाइज करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, क्यों आ रहे थे. सो व्हाट हैपेंस दैट इट इनहांसेस द फैट यूटिलाइजेशन, फैट मोबिलाइजेशन. जहां पे फैट जाते हैं वहां से मोबिलाइज करेगा एंड इट कॉजेज द लाइपोलाइसिस फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. एसिटाइल को एंजाइम में बनाता है and that is used as energy substrate. Okay, what happens that under the influence of this growth hormone or somatomedins, insulin like growth factor, suppose this is the adipocyte having the stored lipid molecule that is triglyceride है ना. ये क्या करते हैं, activates a very special enzyme that is called hormone sensitive lipases, उसको एक्टिवेट करते हैं. और ये it is a cutter. These hormone sensitive lipases are the cutters for this triglyceride. Okay, उसको कट करेगा stored molecule और कट करके क्या करेगा, it will form free fatty acid and glycerol and this will go to the circulation और free fatty acid का level increase करेगा. It will increase the free fatty acid level and this free fatty acid level will go to the liver. Okay, और एसिटाइल को एंजाइम में बनता है और वो क्या होता है, दैट में भी यूटिलाइज एज द एनर्जी सोर्स. ठीक है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है, इफ देयर इज इंक्रीज लाइपोलाइसिस, बहुत ज्यादा लाइपोलाइसिस होने लगेगा तो क्या होगा, फ्री फैटी एसिड का लेवल ज्यादा होगा. फ्री फैटी एसिड लेवल ज्यादा होगा तो एसिटाइल को एंजाइम के साथ में एसिटो एसिटिक एसिड भी बनता है एंड दैट इज हैविंग ए कीटोजेनिक एक्शन, इसी को बोलते हैं.
कीटोजेनिक एक्शन, अगर ग्रोथ हार्मोन का फंक्शनिंग ज्यादा है, ओके, एंड इट इसको हम कहते हैं फैटी लीवर करा देता है, एसिटिक एसिड दैट विल बी डिपॉजिटेड इन द लीवर एंड दैट कॉजेज फैटी लीवर, है ना, तो इसके चलते हो सकता है। So it in the proper, अगर optimal level of growth hormone है, it will enhance the fat utilization for energy production, okay. So it increases the free fatty acid level in the plasma, free fatty acid level increase कर रहे हैं, isn't it, and it is having a ketogenic effect, as I have told you, if there is increased lipolysis, it will form ketone bodies, okay, and that may get deposited in the liver, acetoacetic acid especially, and that may form fatty liver, okay. So acetyl coenzyme A, it can be utilized for energy production, okay. acetyl coenzyme A किसमें जाते हैं एनर्जी के लिए, ग्लाइकोलिसिस पाथवे जाते हैं, to give the energy, yes, Krebs cycle, yes, so it will go to the Krebs cycle and it will form the energy, okay. So ultimately what is happening, it is having a protein sparing effect, प्रोटीन को नहीं, फैट को मोबिलाइज ज्यादा करता, ओके, ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज इंक्रीज करने के लिए, सो प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट कहते हैं, सो दैट योर बॉडी में क्या होगा, फैट कंटेंट कम होगा और मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ओके, मसल ग्रोथ के लिए क्या है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी ग्रोथ के लिए, isn't it, so it is having a protein sparing effect or ketogenic effect we have discussed. Then the carbohydrate metabolism, what will happen to the carbohydrate, it is a pro-diabetogenic hormone, you all know, we have discussed, so it is a pro-diabetogenic hormone, that is glucose level is increasing under the influence of growth hormone, है ना, अगर फास्टिंग स्टेट में होता है तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है ना, क्योंकि आपको ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, उस टाइम कम हो रहा है तो, ओके, सो इट इज अ प्रो डायबिटोजेनिक हार्मोन, हाउ इट इज प्रोमोटिंग द प्रो डायबिटोजेनिक ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, इट इज इंक्रीजिंग द हेपेटिक मोबिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, बाय इधर बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाटएवर, ग्लूकोज से ग्लूकोज लीवर से आपको ग्लूकोज आउटपुट को इंक्रीज कर रहा है, एंड ऑल्सो इट इज डिक्रीजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, इवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंसुलिन ऑल्सो, इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है सेल्स को, isn't it, सेल्स में पुश करता है, isn't it, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो तो उसका जो आपको अपटेक है स्केलेटल वो कम हो जाएगी, ओके, सो इट डिक्रीजेस द पेरिफेरल इंसुलिन सेंसिटिविटी, दैट इज एंटी इंसुलिन इफेक्ट, है ना, एंटी इंसुलिन इफेक्ट हुआ ना इसका, बट नॉट डायरेक्टली एक्चुअली, सो इट रिड्यूसेस द ग्लूकोज अपटेक बाय स्केलेटल मसल एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ग्लूकोज अपटेक बाय एडिपोसाइट्स, लिपिड सेल्स भी ग्लूकोज, जो आपका एडिपोसाइट्स है, फैट सेल्स है, वो भी ग्लूकोज एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं, पता है ना, टू अल्टीमेटली दे टेक अप द ग्लूकोज, दे कन्वर्ट इट इनटू ट्राइग्लिसराइड्स, ओके, सो it also reduces the glucose uptake by adipocytes, okay, so glucose uptake अगर कम हो जाएगा skeletal muscle में और या adipocytes में, what will happen, level of glucose will increase, डायबिटोजेनिक एक्शन जिसको बोल रहे हो आप, हाइपरग्लाइसीमिया, जब हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो क्या होगा, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होगा फॉर द टाइम बीइंग, isn't it, stimulate the pancreas to release more insulin, but it will not act under the influence of इंक्रीज फ्री फैटी एसिड्स, ग्रोथ हार्मोन लेवल ज्यादा होगा तो फ्री फैटी एसिड लेवल इंक्रीज हो जाता है, और वो फ्री फैटी एसिड क्या करता है, वो हैम्पर करता है, वो इंपीड करता है एक्शन ऑफ इंसुलिन, इट रेसिस्ट द एक्शन ऑफ इंसुलिन, फ्री फैटी एसिड, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग अ डायबिटोजेनिक एक्शन, ओके, क्यों डायबिटोजेनिक एक्शन है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से, ओके, व्हाई ग्रोथ हार्मोन इज हैविंग अ डायबिटोजेनिक एक्शन, यू कैन मेंशन दिस मैकेनिज्म, आर एबल टू अंडरस्टैंड. So this is the skeletal muscle, this is the adipocytes, you can see ये ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, ओके, तो इंसुलिन इंक्रीज हुआ, लेकिन ये क्या होता है, ये वापस आ जाता है, ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोमेटिक, ये वापस आ जाता है,
So glucose का level increase, it keeps on sustained increase of blood glucose. So it decreases the insulin sensitivity. Insulin के actions को कम कर रहे हैं, sensitivity. On the mineral metabolism, different minerals है, calcium, phosphorus, sodium, potassium, ये सब को क्या होता है, इसके absorption को increase करता है from the GIT as well as the kidney tubules. Kidney tubules में filter होके बाहर जा रहे हैं यूरिन से, and GIT से जा सकते हैं, तो वहां पे ये reabsorb करता है. Okay, it increases the calcium reabsorption from the GIT and also the vitamin D का effect को बढ़ाएगा, and it decreases the excretion of sodium, potassium, calcium, phosphorus from the renal tubules. Okay, renal tubules जो है उस वहां से absorb करते हैं, reabsorb करा देते हैं. Okay, so in a nutshell you can think of lipids पे क्या है इसका lipolytic action है ना, catabolic action. Okay, and there is anabolic action on proteins. Proteins पे anabolic actions है growth hormone का. Okay, and glucose पे क्या है इसका glucose sparing effect है ना, glucose को spare करता है, glucose का level बढ़ा रहा है. Okay, glucose sparing action. Glucose and protein, you can see protein को भी utilize नहीं कर रहा. Okay, so in presence of excess growth hormone, what happens? Major fuels become fatty acids. Fatty acids become the major source of energy, not the glucose, which is the usual cause, which is the usual sense. Okay, normally usually glucose use होता है. So this is overall action of the growth hormone. अब इसमें दो, एक growth hormone का direct action हमने बताया आपको, एक indirect action है. Direct action तो growth hormone से ही हो रहा है, directly कर रहा है. Indirectly insulin like growth factor से कर रहे, somatomedin C से कर रहे, है ना. दोनों एक्शन दोनों ही करते, बट ग्रोथ हार्मोन प्रिडोमिनेटली एक्ट्स ऑन द मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिक एक्शंस मेनली है. रख दो यार, ठीक है. एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इट इज हैविंग ए ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्शन मेनली, लेकिन दोनों एक्शन दोनों में ही है. कैन थिंक ऑफ एपिफाइशियल ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा इससे करते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट कैन सी स्केलेटल protein synthesis here also protein synthesis, but there is a difference, slight catch here in the insulin like growth factor और growth hormone के actions. Okay, lipolysis कर रहा है यहाँ पे growth hormone directly, but it is anti lipolytic insulin like growth factor. बस यही एक difference है इसमें, because it is a insulin like action होगा इसमें, insulin like action. Okay, so it is anti-lipolytic, it prevents lipolysis, but protein synthesis कर रहा है यहाँ पे भी. Okay, insulin-like activity, all the functions are same. समझ में आ रहा है आपको? Everyone is understanding? Decreases the insulin sensitivity. We have discussed all these functions. Then coming on to the very important part of this growth hormone, that is applied aspects. You must have heard some diseases like acromegaly, gigantism, dwarfism. Have you heard of Laron dwarfism? There is African pygmies. Yes. There is pituitary dwarf, isn't it? Thyroid dwarf. So we'll see. So hypersecretion of growth hormone. Obviously acromegaly और gigantism ये देखेंगे. Hypersecretion से dwarfism हो सकता है. पिट्यूटरी ड्वार्फ, लारोन ड्वार्फ, एक और होता है अफ्रीकन पिग्मीज. ओके, हाइपर सिक्रीशन यू कैन सी ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन इसमें आकर इन द चिल्ड्रन बिफोर द एपिफाइशियल क्लोजर, है ना. एपिफाइशियल क्लोजर से पहले भी हो सकता है और ये बाद में भी हो सकता है. जब पहले होगा तो क्या होगा, विच कंडीशन विल अकर, इफ देयर इज इंक्रीज हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन बिफोर द एपिफाइशियल क्लोजर, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, जाइजेंटिज्म, लीनियर ग्रोथ बढ़ेगा, है ना, क्योंकि अभी फ्यूज नहीं हुआ एपिफाइशियल प्लेट. फ्यूज होने के बाद तो आपका लीनियर ग्रोथ स्टॉप हो जाता है, isn't it? अगर ये आपको एडल्ट में हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का आफ्टर द फ्यूजन ऑफ एपिफाइशियल प्लेट,
अगर फ्यूज हो गया तो लीनियर ग्रोथ तो टॉल तो होगा नहीं सब्जेक्ट, अब क्या होगा, गर्थ बढ़ेगा उसका, इजंट इट, पेरिफेरल ग्रोथ होगा उसका, दैट इज कॉल्ड, क्या कहते हो आप, एक्रोमीगैली. ओके, एक्रोमीगैली, एक्रल, एक्रल मीन्स पेरिफेरल पार्ट को कहते हैं, megaly means increase, enlargement, enlargement of the acral parts of the body. Acral means peripheral part of the body, hand size, feet size, ये सब बढ़ जाता. Okay, and what are the cause after the fusion of the epiphyseal plate, ये याद रखना है ना. what may be the cause, you can think of, क्या हो सकता है, हाइपर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो जो आपका क्रोमाफिल सेल्स है ना, उसमें ट्यूमर हो जाए. if there is some tumor which is causing the increased activity of that cells, so what will happen, that hormone will increase obviously. so anterior pituitary tumor, जिसको स्पेशली सोमैटोट्रॉफ, सोमैटोट्रॉफ बोलते हैं ना जो सेल्स निकालते हैं ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रॉफ्स कहते हैं. so सोमैटोट्रॉफ एडिनोमा, एडिनोमा इज ए स्मॉल ट्यूमर. ओके, एडिनोमा, तो सोमैटोट्रॉफ एडिनोमा बिनाइन ट्यूमर को कहते हैं, एडिनो सार्कोमा अब मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया, सार्कोमा. so सोमैटोट्रॉफिक एडिनोमा of the anterior pituitary, pituitary cause. there may be extra pituitary cause as well, सिर्फ पिट्यूटरी के चलते नहीं हो सकता. apart from pituitary what may be the possibilities, अगर हाइपोथैलेमस से लिंक्ड है ये, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो जाएगा, है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज करने लगेगा. so in that case also what will happen, जिसमें हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में occur. and there is a term which is called paraneoplastic syndrome. have you heard of this paraneoplastic syndrome? This is a group of syndromes which occur if you are having actually if you are having the tumor apart from the primary tumor. primary tumor जैसे यहाँ पे पिट्यूटरी है, उसके अलावा पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के अलावा कहीं और पे कोई किसी और ट्यूमर है, लाइक लंग ट्यूमर है, पैंक्रेटिक ट्यूमर है, उसके चलते अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. उसके चलते अगर कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहा है, ओके, दैट इज कॉल्ड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. ओके, कार्सिनोइड ट्यूमर भी होता है इसमें, कार्सिनोइड ट्यूमर, दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. मल्टीपल जगह ट्यूमर्स है, ओके, दैट इज कॉल्ड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. ओके, so that may also cause this hyper secretion of growth hormone. okay, like thyrotroph tumor में होता है ना, that is related. so tumors of the somatotroph usually, ये याद रखना है आपको, somatotrophic tumor is usually associated with increased prolactin secretion. prolactin secretion के साथ, क्योंकि साथ में ही दोनों है ना, वहां पे acidophilic tumors हैं. okay, so 20 to 40% cases में क्या होता है, prolactin secretion is increased. ओके, अपार्ट फ्रॉम द ग्रोथ हार्मोन हाइपर सिक्रीशन तो रहेगा ही, साथ में प्रोलैक्टिन सिक्रीशन भी रहता है. सो दीज आर द फीचर्स, टॉप टू बॉटम यू कैन थिंक ऑफ एक्रल ग्रोथ. ओके, एक्रल पेरिफेरल ग्रोथ, लाइक यू कैन सी फ्रॉम हेयर, है ना, यहाँ पे देखो क्या होगा, इसके लोअर जॉ प्रोट्रूडेड हो जाते, लोअर जॉ इज प्रोट्रूडेड प्रोमिनेंट आगे की तरफ, दैट इज कॉल्ड प्रोग्नैथिज्म. प्रोग्नैथिज्म ये इस तरह का है ना, that is called prognathism. okay, then there is acromegalic facies कहते हैं. acromegalic facies क्या होता है, ब्रॉड हो जाते हैं उसके फोरहेड, प्रोमिनेंट सुप्राऑर्बिटल रिज, जितने फेशियल बोन्स है सब इनलार्ज हो जाते हैं, मैलार बोन्स, फेशियल बोन्स. ओके, these are all enlarged, that is called acromegalic facies. इस तरह का facies. okay, then you can see prominent supraorbital ridge, frontal bossing, जो आपका फोरहेड है वो प्रोमिनेंट हो गया. ओके, देन यू कैन सी देयर इज आल्सो आईज में भी होता है, ऑप्टिक डिस्क आपको बताया था ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ट्यूमर है तो वो विजुअल प्रॉब्लम कर सकता है. ओके, दैट इज कॉल्ड पैपिलोएडिमा. पैपिलोएडिमा, हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड, एडिमा ऑफ द ऑप्टिक डिस्क. ऑप्टिक डिस्क में अगर एडिमा हो, स्वेलिंग हो गया, दैट इज कॉल्ड पैपिलोएडिमा, दैट में कॉज विजुअल प्रॉब्लम. ओके, देन बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया, ऑप्टिक काइज्मा में ट्यूमर है, ऑप्टिक काइज्मा कंप्रेस हो रहेगा. ओके, दैट में कॉज बाइटेम्पोरल हेमिएनोपिया. बाइटेम्पोरल मतलब टेम्पोरल साइड का विजन चला गया,
हम जब देखते हैं तो टेम्पोरल भी है इधर, नेजल एरिया भी देख रहे हैं, तो आपका जो पेरिफेरल विजन है उसका लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड बाई टेम्पोरल, दोनों साइड का विजन चला गया। ओके, देन यू कैन थिंक ऑफ कार्डियोमिगैली, कार्डियोमिगैली होगा, हार्ट फेल्यूर में जा सकते हैं, अरिथमियाज हो सकते हैं। देन यू कैन सी आईज में एंजियोइडिस्टिक बोलते हैं, वो क्या होता है, वो आपको जो रेटिना, पेरिफेरल रेटिना जो होता है आपका ऑप्टिक डिस्क के अराउंड, देयर इज सम क्रैक्स इन द ब्रश मेम्ब्रेन होता है आईज में, बिटवीन द रेटिना एंड द कोरॉइड प्लेक्सस देयर इज अ लेयर दैट इज कॉल्ड ब्रश मेम्ब्रेन, उसमें क्या होता है, ब्रेक्स हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड एंजियोइडिस्टिक। और वॉइस, थिकन्ड लिप्स, ये सब हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। देन देयर इज हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया तो होगा, hypertension will also be there, okay, and all the visceromegaly. Then there will be osteoarthritis, okay, osteoarthritis bhi ho sakta hai, inflammation, okay. Then you can think of, this is very important, increased heel pad thickness, increased heel pad thickness, yahan pe likha hai na, increased hand and foot size, ये heel pad thickness हो जाएगा हाथों का, एंड आपका ग्लव्स आपके फुट एंड हैंड्स में नहीं आएंगे साइज इंक्रीज होने से। ओके, एंड देयर विल बी कंप्रेस्ड मीडियन नर्व विल बी कंप्रेस्ड लीडिंग टू कार्पल टनल सिंड्रोम, है ना, कार्पल टनल सिंड्रोम। सो देयर विल लॉट ऑफ फीचर्स विल बी हैपनिंग। देयर विल बी हिर्सुटिज्म इन फीमेल, फीमेल में क्या होगा, अनड्यूली ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन द फेशियल एरिया, okay, that is called hirsutism। okay, then there will be testicular atrophy, ये जो टेस्टिकुलर एट्रोफी हो रहा है, या प्रॉक्सिमल मायोपैथी विल आल्सो बी देयर। जो मायोपैथी क्यों होगा, क्योंकि शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाइपरग्लाइसेमिक के इफेक्ट के चलते हो सकता है। ओके, तो देयर विल इंक्रीज हील पैड थिकनेस, उसका शूज नहीं आएगा, द शूज विल नॉट फिट, ओके, ग्लव्स विल नॉट फिट इन हिज हैंड, so a lot of features will be there। So you can like frontal bossing, just I have noted down on those points, frontal bossing, prominent supraorbital ridge, visual problem, prognathism, macroglossia, आपका उसका tongue size increase होगा, tongue will be enlarged, increased hand and foot size, acral part enlargement, carpal tunnel syndrome due to median nerve compression, then cardiomyopathy, okay, headache, papilloedema है, हेडेक हो सकता है, हाइपरटेंशन, एच से आ रहा है, तीन चीज आ रहा है, हेडेक, हाइपरटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, देन हिर्सुटिज्म आल्सो, देन इन मेल गायनेकोमास्टिया, ओके, गायनेकोमास्टिया समझते हो ना, मेल ब्रेस्ट, मेल में हो जाता है, विसरोमिगैली, ऑस्टियोआर्थराइटिस, प्रॉक्सिमल मायोपैथी, इंक्रीज हील पैड थिकनेस। सो a lot of features will be there, you can just imagine those features। So up to 25% of patients, I have told you, with acromegaly, they may develop diabetes, frank diabetes, okay, pro-diabetogenic hormone, and 1/3 of patient will be having prolactin level increase होता है, that will cause galactorrhea, okay, so increased risk of developing polyps, GI polyps हो जाता है, और malignancies होने का chances बढ़ जाते हैं। So a lot of features are there। So how will you diagnose? Obviously उसके diagnosis के लिए हमें CT MRI करना होगा ब्रेन का, है ना, ट्यूमर लोकेट करने के लिए, ओके, एंड ऑल्सो एक टेस्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन टेस्ट, ओके, दैट इज फेल्यूर ऑफ ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन। अगर ओरल ग्लूकोज दे रहे, है ना, ग्लूकोज देने से क्या होगा, फेल्यूर ऑफ ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन, ग्रोथ हार्मोन सप्रेस नहीं हो रहा, समझ पा रहे, यूजुअली सप्रेस होना चाहिए, है ना, जब इफ देयर इज फेल्यूर ऑफ ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन within 1 to 2 hours of oral glucose load। So how will you treat it? Obviously उसको surgically remove करना होगा, okay, adenoma को, that is the best option, but there are certain drugs also, okay, like किस तरह का दोगे आप, growth hormone inhibitory hormone का एनालॉग दे दिए, somatostatin एनालॉग, that is called octreotide, drugs का नाम है, lanreotide, growth hormone receptor antagonist, ये नाम है इसका, पेग्विसोमेंट, देन डोपामिन एगोनिस्ट भी साथ में, चूंकि क्या क्या हो रहा है वहां पे, गैलेक्टोरिया भी हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या दोगे आप, डोपामिन एगोनिस्ट। डोपामिन क्या है,
प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर जो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस, दैट इज इटसेल्फ कॉल्ड डोपामिन, है ना। तो उसका एगोनिस्ट देंगे, दैट इज ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बेगोलिन, इस तरह का देना होता है। देन ऑल्सो रिसेंटली रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी आ गया मार्केट में, मेनली फॉर द रिसर्च पर्पस, इस तरह का ड्रग्स आते हैं। देन जिजाइंटिज्म बिफोर द फ्यूजन ऑफ द एपिफाइजियल प्लेट, है ना, बच्चों में अगर हो गया ग्रोथ हार्मोन लेवल ज्यादा, दैट इज कॉल्ड जाइजेंटिज्म। ऑब्वियसली इसमें भी क्या होगा, आपका पिट्यूटरी ट्यूमर हो सकता है या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो सकता है, इजंट इट। ऑब्वियसली द सब्जेक्ट में बिकम एबनॉर्मली टॉल, अप टू 8 to 9 फीट हो सकता है। ओके, अदर फीचर्स आर सेम एक्सेप्ट द एक्रोमेगैलिक फेसेस नहीं रहेगा। ओके, टॉल स्टेचर यू कैन थिंक, bilateral gynecomastia, hyperglycemia also will be there. Okay, there will also libido. Features will be same except the tall size. Then hyposecretion, that is dwarfism. It results in dwarfism, and it may occur due to the, क्यों हो सकता है dwarfism? हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं हो रहा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमिक फेल्यूर। ओके, अगर हाइपोथैलेमस if anyhow it is injured, okay, that may cause decrease in growth hormone and pituitary failure as well. Okay, yeah, growth hormone receptors काम नहीं कर रहे obviously. Okay, and also last but not the least, but very important, that for the growth you should must remember the insulin like growth factor. अगर liver से proper release नहीं हो रहा वो, okay, it is not synthesized in the liver, by the liver, okay, that may also lead to the short stature, isn't it? Short stature, increased fat, okay, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन नहीं आ रहा तो फैटी कंटेंट इंक्रीज होगा, लीनियर ग्रोथ कम हो जाएगा, हाई पिच वॉइस, एंड दे विल बी हाइपोग्लाइसेमिक। ओके, ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन एडल्ट्स, अगर डेफिशिएंसी एडल्ट्स में हो गया, है ना, तो क्या होगा, ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है, adults में हो रहा है, तो growth will not be impaired in that case. So other parameters will be affected. That is called pan hypopituitarism. As part of pan hypopituitarism में सारे hormones कम हो गए, pan hypopituitarism. Okay? The sequential order of hormone loss किसका, जिसका सबसे ज्यादा लॉस होता है, जिसका सबसे ज्यादा सेल्स होंगे, ग्रोथ हार्मोन का सबसे ज्यादा लॉस होगा। ओके, देन FSH, LH, TSH, देन ACTH, इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ओके, सो हाइपोग्लाइसेमिक होगा, प्रोटीन विल बी डिक्रीज, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, मसल मास कम हो जाएगा, फैटी कंटेंट इंक्रीज होने लगेगा, इजंट इट। मसल वीकनेस विल बी देयर, ऑब्वियसली टायर्डनेस और एग्जॉस्ट हो जाएगा। देन ड्वार्फिज्म में भी पिट्यूटरी ड्वार्फ, है ना, पिट्यूटरी ड्वार्फ पिट्यूटरी के चलते हो रहा है, पिट्यूटरी इज नॉट वर्किंग वेल, एंटी पिट्यूटरी, व्हाट इज हैपनिंग हियर, not enough growth hormone, okay, not producing enough growth hormone. Pituitary में अगर suppression है, okay, what will happen, it will not produce enough growth hormone. So growth hormone नहीं हो तो insulin like growth factor भी कम हो जाएंगे, इसमें दोनों ही कम हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, growth hormone भी नहीं रिलीज हो रहा है, कम हो रहा है, और उसके चलते sequentially insulin like growth factor is also not in enough amount. So what will happen, the child will fail to grow, that is called pituitary dwarf. Okay, एक होता है thyroid dwarf, have you heard of thyroid dwarf, जिसको हम क्रेटिन कहते हैं, क्रेटिन चाइल्ड, है ना, उसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्वार्फ दोनों ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंटल फंक्शनिंग है वो नॉर्मल होता है, और पिट्यूटरी ड्वार्फ में क्या होता है, वो मेंटल रिटार्डेशन होता है सब्जेक्ट को। ओके, क्रेटिन्स आर मेंटली डिप्रेस्ड, समझ में आ रहे, so mental power remains normal here pituitary dwarf में, can see short stature होगा, muscle weakness होगा। then there is another Laron dwarfism, Laron dwarfism में क्या है, anti pituitary ठीक है, growth hormone is getting released, growth hormone is getting released in adequate quantity, but what is happening here, जो growth hormone है वो जाकर उसको जो receptors हैं वो बाइंड नहीं कर रहा है, रिसेप्टर इज नॉट वर्किंग वेल। ओके, सो
it is also characterized by short stature, but this is congenital अगर growth hormone receptor abnormality है. Okay, so there is problem in the growth hormone receptor. It may be decreased or it may be unresponsive. So what will happen? Growth hormone is normal. Growth hormone level check कर रहे तो normal आ रहा है. Okay, या हो सकता है एवं normal हो, क्योंकि negative feedback mechanisms उसको increase कर सकते हैं. Okay, it may be normal or above normal. क्या कर रहे हो आप पूर्वा? क्या बातें कर रहे हो? जाओ वहां जा खड़े हो जाओ. गो देयर, आपके बगल में भी जो दोनों, गो. आप भी जाइए. यू ऑल्सो गो. स्पेक्स, हाँ यस, दैट गर्ल नेक्स्ट टू हर. जाइए उधर. आप इधर खड़े हो जाओ. कम हियर. उधर दूर दूर में चले जाओ. So what is happening here? Growth hormone level is normal or it may be abnormal, and that's why it is called, क्योंकि रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, ग्रोथ हार्मोन insensitivity syndrome कर रहे. Okay, here the growth hormone level is normal but insulin like growth factor इसमें कम हो जाते हैं. Okay, low insulin like growth factor, क्योंकि रिसेप्टर काम नहीं कर रहे. ग्रोथ हार्मोन तो नॉर्मल रिलीज हुआ, वो लीवर में जाकर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर काम ही नहीं कर रहे, रिलीज नहीं करा पा रहे, क्योंकि रिसेप्टर उसके रेस्पॉन्सिव नहीं है. ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग? देयर इज लो लेवल ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और सोमैटोमेटिन सी बट नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन लेवल. ओके, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड लैरोन ड्वार्फिज्म. उसमें भी ड्वार्फिज्म होगा, कम होगा, लेकिन वो क्या होगा? इट इज मेनली ड्यू टू द इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर. ओके, लो ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन. ओके, एंड नॉर्मल और एलिवेटेड जी लेवल्स. जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो लो IGF-1 मिलेगा, सोमैटोमेटिन सी का लेवल कम मिलेगा, लो बाइंडिंग प्रोटीन होगा, एंड ऑल्सो एलिवेटेड और नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन लेवल. अगर नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन मिल गया तो इसका मतलब सब चीज ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है. यू मस्ट चेक फॉर द सोमैटोमेटिन सी लेवल ऑल्सो. ओके, सो इसके लिए एक ड्रग्स आया है. ओके, जिसमें हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एनालॉग देते हैं. ओके, रिसेंटली इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस. क्या नाम है? मेकासर्मिन. ओके, ये क्या है? ह्यूमन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एनालॉग. ओके, देयर इज अ होल ट्राइब इन द अफ्रीका व्हिच इज ड्वार्फ, दैट इज कॉल्ड अफ्रीकन पिग्मीज. क्लैरोन ड्वार्फिज्म तो इंडिस्क्रिमिनेट कहीं भी मिल सकते, बट देयर इज होल ट्राइब इज ड्वार्फ. ओके, दैट इज कॉल्ड अफ्रीकन पिग्मीज. इसमें भी क्या है? ब्लड लेवल्स ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इनवेरिएबली लो, पूरे ट्राइब में ही कम है. ओके, ओके, ग्रोथ हार्मोन लेवल हेयर इज नॉर्मल, इट मे बी एबव नॉर्मल हेयर. बट चूंकि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में है, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में है, दैट इज कॉल्ड पिग्मीज, अफ्रीकन पिग्मीज. ओके, देन कमिंग ऑन टू द प्रोलैक्टिन, लिटिल बिट अबाउट प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन क्या है? हार्मोन फॉर मिल्क सिंथेसिस. यू ऑल नो, मिल्क सिंथेसिस, सिंथेसाइज कर रहे हैं. और ऑक्सीटोसिन क्या है? लेट डाउन हार्मोन कहते हैं ना उसको, मिल्क लेट डाउन हार्मोन. ओके, सो मिल्क सिंथेसिस इज डन बाय प्रोलैक्टिन. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लैक्टोजेनिक, मैमोट्रॉफिक और गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन. एनीथिंग कैन बी टोल्ड. एंड यू ऑल नो इट इज बोथ आर हैविंग द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, है ना, एंड फंक्शनल सिमिलैरिटी एज वेल. ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन to the human growth hormone. So it favors lactogenesis. मेन फंक्शन क्या है? एक तो लैक्टोजेनेसिस कर रहे हैं, मिल्क सिंथेसिस, एंड ऑल्सो मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, जो उसमें जो मेमोरी फॉलिकल्स होते हैं, ओके, तो उसको डेवलप कराते हैं. देन ऑल्सो इट इज हैविंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. ओके, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, एंड इम्यून फंक्शंस, बच्चों को कंसीव करने में भी हेल्प करता है. ओके, यस, इम्प्लांटेशन में भी हेल्प करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द सोर्स? यू ऑल नो. कहां से आ रही है? लैक्टोट्रॉप से आ रहे हैं ना, लैक्टोट्रॉप्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, सोमैटोट्रॉप्स वहां से आ रहे थे. ये इट इज कमिंग फ्रॉम द लैक्टोट्रॉप.
that is also 10 to 25% of the total anterior pituitary cells are comprised of lactotrophs. और वो कितना था somatotrophs? Around 50%, isn't it? So these two are major portions. Then you all know during the lactation and pregnancy, these ये जो लैक्टोट्रॉफ का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है. जो लैक्टोट्रॉफ सेल्स हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन का ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, तो ये क्या होता है, ये सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं. ओके, डेवलप होता है. एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस प्रोलैक्टिन? इफ यू रिमेंबर, ग्रोथ हार्मोन का कैसा था, और इट वाज वर्किंग? यस, व्हाट वाज द पाथवे? टायरोसिन काइनेस के थ्रू कर रहा था, बाय द टू JAK and STAT kinase pathway. It is also working through that same mechanism. Okay, same pathway से काम करता है. So I am not going to repeat that. So coming on to the regulation of the prolactin secretion. Obviously there is hypothalamic pituitary, है ना, hypothalamic pituitary axis आ रहा है इधर, है ना, और mammary gland का axis है ये. So hypothalamus is releasing this हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर आता है ना वहां से, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर. रिसेंटली इट हैज आल्सो बीन सीन दैट देयर इज अ रिलीजिंग फैक्टर आल्सो व्हिच इज बीइंग रिलीज्ड बाय द हाइपोथैलेमस. ओके, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस. ओके, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं उसको. ओके, बट स्टिल इट इज इन रिसर्च. एंड आल्सो थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन निकल रहे थे ना, thyroid releasing hormone from the hypothalamus, isn't it? That is also activates, excites the lactotrophs. ये lactotroph को excite करता है prolactin secretion को. हमने देखा था PIH, आपको बताया था, डोपामिन जो होता है वो जाके lactotroph पे काम कर रहा है और prolactin के secretion को control कर रहा है, isn't it? If you remember the previous class. So what is happening here? The thyrotroph releasing hormone, thyrotropin releasing hormone and unknown prolactin releasing factor is released from the nucleus, ventromedial nucleus especially, from the hypothalamus. और वो क्या कर रहा है, लैक्टोट्रॉफ को स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज मोर ऑफ द प्रोलैक्टिन. ओके, प्रोलैक्टिन को सिंथेसिस कर रहा है. ओके, एंड प्रोलैक्टिन ये क्या कर रहा है, ये हाइपोथैलेमस को फीडबैक से कंट्रोल कर रहा है. ओके, सो बट डोपामिन, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर है, और सोमैटोस्टैटिन ये दोनों इनहिबिट करते हैं प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन, और मैमरी ग्लैंड सिक्रेशंस को और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं. देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर स्टिमुलेटिंग दीज लैक्टोट्रॉफ्स. कुछ फैक्टर क्या होता है, लैक्टोट्रॉफ्स को स्टिमुलेट कर रहा है टू रिलीज मोर प्रोलैक्टिन, लाइक व्हेन द रिक्वायरमेंट इज मोर, like in pregnancy, lactation, isn't it? And during sleep, this is important. During sleep also the prolactin secretion is increased, but किस स्टेज में हो रहा है ये, रेम स्लीप में. दो स्टेज होते हैं, कौन कौन से हैं, नॉन रेम एंड रेम स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड रेम स्लीप. ये क्या हो रहा है, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन इज गेटिंग इंक्रीज, स्टिमुलेटेड इन रेम स्लीप, है ना. और ग्रोथ हार्मोन कब हो रहे थे, नॉन रेम स्लीप, डीप स्लीप में, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में. एंड इनफैक्ट ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है रेम स्लीप में. रेम स्लीप में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है, और यहाँ पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है रेम स्लीप में. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स. एंड ऑल्सो इन एक्सरसाइज, एस्ट्रोजन. आपका अटेंडेंस मैं इससे मार्क कर लूंगा, आपका DH से. So because I am not having time. Sexual activity also, this thyrotropin releasing hormone, prolactin releasing factor. You are happy? So there is happy or unhappy? Unhappy. बोर हो गए. So what is happening? इतना मेहनत किया अटेंडेंस के लिए. So there is certain drugs like antipsychotic drugs कुछ होते हैं, कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, स्पेशली द क्लोरोप्रोमाजिन. ये क्या करते हैं, वो D2 एंटागोनिस्ट होते हैं, है ना. सो दे इंक्रीज द लैक्टोट्रॉफ प्रोलैक्टिन सिक्रीशन. VIP, ऑक्सीटोसिन, तो कुछ फैक्टर्स है जो
इनहिबिट कर रहे हैं, थायराइड हार्मोन, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड D2 एगोनिस्ट, ब्रोमोक्रिप्टिन, ये याद रखना। ब्रोमोक्रिप्टिन अगर आप दोगे तो क्या होगा, गैलेक्टोरिया कम होगा, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन कम होगा, ओके। और D2 एंटागोनिस्ट देंगे तो इंक्रीज होता है, ओके। लाइक कोई भी एंटी साइकोटिक ड्रग अगर पेशेंट को देते हैं ना, द चांसेस आर दैट ही और शी में कंप्लेन ऑफ गैलेक्टोरिया, ओके। बोले कि मिल्क सिक्रीशन हो रहा है, ओके। Milk synthesis and development of, we have discussed. Hyperplasia of breast tissue in females, this is a very important question which is asked. क्या होता है जब लैक्टेशन करते हैं तो क्या होता है, this is one of the natural method of contraception, lactational amenorrhea होता है ना, lactational amenorrhea सुना है ना, so why it is happens, जिसमें ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, why there is lactational amenorrhea. Okay, please keep silence. No noise, please. So during lactation, what happens? If the baby is breastfeeding, in that period there is very less chances of getting pregnant. Okay, why it is so? जब बच्चा सक करता है, what happens? That it stimulates the, ये क्या करता है आपको, inhibit करता है actually, जो आपको hypothalamic pituitary gonadal axis है उसको इनहिबिट करता है। सो FSH OLH का सिक्रीशन, गोनाडोट्रोफिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसको कम कर देता है, ओके। सो व्हाट विल हैपन, इट इनहिबिट द GnRH, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोलैक्टिन, ओके। जैसे शक करेगा प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है लैक्टेशन में, इंक्रीज प्रोलैक्टिन विल इनहिबिट द GnRH सिक्रीशन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड अल्टीमेटली LH FSH विल डिक्रीज। सो ये कम होगा तो क्या होगा, ओवुलेशन डिक्रीज हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, एंड दैट कॉजेस एमेनोरिया, दैट इज द कॉज ऑफ लैक्टेशनल एमेनोरिया, ओके। सो देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ लिबिडो, मैटरनल लव, अफेक्शन, ये सब, ओके। मेल में भी क्या होता है, प्रोलैक्टिन इज एंटी इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी कम करता है, बोथ इन मेल एंड फीमेल, इज इंपॉर्टेंट। FSH LH कम हो रहा है, उसी तरह मेल में भी क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करेगा। प्रोलैक्टिन, हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया causes decrease in fertility, okay, and loss of libido, and also it is having some immunological function for the acceptance of fetal tissue by the mother, okay. Hyperprolactinemia we have discussed, prolactinoma से हो सकता है, acromegaly, and also causes are different for increased prolactin secretion, chronic CRF में हो सकता है, CRF में कैसे होगा, can you think of why there is hyperprolactinemia in chronic renal failure? Because chronic renal failure क्या, renal क्या करता है, वो एक्सक्रीट करता है, जो प्रोलैक्टिन मेटाबोलाइज हो रहा है वो एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, ओके, अगर किडनी खराब है तो उसका, सो देयर विल इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन लेवल, ओके। पेशेंट्स, hyperprolactinemia patients presents with amenorrhea, galactoria, infertility, headache, visual field defects, treatment is same, dopamine agonist देंगे, कम करेंगे, ओके, प्रोलैक्टिन सिक्रीशन, लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बेगोलिन, डोपामिन एगोनिस्ट का नाम है, these are the drugs. So in the next class I will discuss maybe on Saturday or Monday posterior pituitary.